السلام علیکم ناظرین، کوریڈور ریکارڈر میں خوش آمدید۔ چین پاکستان اقتصادی راہداری سے منسلک جڑی داستانیں ریکارڈ کرتے ہوئے میں ہوں ملک ظفر۔ آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں وزیراعظم شہباز شریف نے پیر کو ملک میں آٹے کی قیمتوں میں اضافے کا سخت نوٹس لیتے ہوئے متعلقہ وزراء اور وزارتوں سے اس معاملے پر رپورٹ طلب کر لی ہے۔ اس وقت پاکستانی مارکیٹ میں آٹے کی قیمت 65 روپے فی کلو تک پہنچ چکی ہے، جو کہ قیمت میں اضافے کی ایک وجہ بن گئی ہے۔ پچھلے سال کی بنسبت اس سال گنے کی اتنی بہتر ریکوری نہیں لے سکے، شاید اس میں کچھ بارشوں کی کمی کی وجہ ہے۔ ابھی صاف ذرا ابھی آٹومیٹک سسٹم آ گیا ہے، کمپیوٹر ڈراور آ گیا ہے۔ ابھی جو پہلے سسٹم تھا وہ سینٹر جو کرتے تھے ورکر، اس کے اوپر ہاتھ سے سینٹر ہوتا تھا، وہ سینٹر کرتے کرتے کتنا مال سکرائب ہو جاتا۔ اب ہمارے پاس یہی دیکھ لو، یہ مشین کمپیوٹر مشین ہے جس کو ہم نے ایڈجسٹ یہ تائیوان کی طرف۔ آئیے اس ہفتے کی مقامی اور بین الاقوامی خبروں سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ پاکستان کا مالیاتی خسارہ رواں مالی سال کی پہلی 3 سہ-ماہیوں کے دوران مجموعی ملکی پیداوار جی ڈی پی کا 3.8% ریکارڈ کیا گیا، جبکہ گزشتہ سال کی اسی مدت کے دوران 3% خسارہ ریکارڈ کیا گیا تھا۔ خسارے میں اضافہ سبسڈیز اور گرانٹس میں اضافے کے اخراجات کی وجہ سے ہوا ہے۔ توقع ہے کہ رواں مالی سال کے بقیہ مہینوں میں اخراجات کا دباؤ مزید بڑھے گا۔ وزیر خزانہ اور محصولات مفتاح اسماعیل نے ہفتہ کو یہاں کہا کہ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کے ساتھ عملے کی سطح کے معاہدے پر جون میں دستخط کیے جائیں گے، اور انہوں نے کہا کہ حکومت ملک کے غریبوں کو زیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کرنے کی پوری کوشش کرے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے حال ہی میں اعلان کیا تھا کہ حکومت ایندھن کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کی وجہ سے عوام پر پڑنے والے بوجھ کو کم کرنے کے لیے ایک ریسکیو پیکج شروع کرے گی۔ مہنگائی، جیسا کہ کنزیومر پرائس انڈیکس CPI سے ماپا گیا، ٹرانسپورٹ اور خوراک کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کی وجہ سے مئی میں 13.76% پر تقریباً 2.5 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ یہ جنوری 2020 کے بعد سب سے زیادہ افراط زر ہے، جب یہ 14.6% تھی۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ افراط زر میں اضافے کا بنیادی سبب بین الاقوامی اجناس کی قیمتوں میں اضافہ اور شرح مبادلہ میں نمایاں کمی تھی۔ در حقیقت امریکی ڈالر اور تجارتی خسارے کی وجہ سے روپے کی قدر میں کمی پاکستان کے اہم تجارتی شراکت داروں کی کرنسیوں کے مقابلے بنیادی طور پر ملک اور اس کے شراکت داروں کے درمیان افراط زر کے فرق کی عکاس ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پیر کو ملک میں آٹے کی قیمتوں میں اضافے کا سخت نوٹس لیتے ہوئے متعلقہ وزراء اور وزارتوں سے اس معاملے پر رپورٹ طلب کر لی ہے۔ اس وقت پاکستانی مارکیٹ میں آٹے کی قیمت 65 روپے فی کلو تک پہنچ چکی ہے، جو کہ قیمت میں اضافے کی ایک وجہ بن گئی ہے۔ یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن میں 1 جون سے گھی اور کوکنگ آئل کی قیمتیں دگنی ہو گئی ہیں، جس سے صارفین حیران ہیں۔ خوردہ مارکیٹوں میں مشہور برانڈز کے گھی اور کھانا پکانے کی زیادہ سے زیادہ قیمتیں اب بھی 540 سے 560 روپے فی کلو گرام فی لیٹر کے درمیان ہیں، جس میں کوئی خاص اضافہ نہیں ہوا ہے۔ کھاد کے صنعت کاروں نے یوریا کی قیمت موجودہ 1768 روپے فی بوری سے بڑھا کر 1850 روپے کر دی ہے۔ افراط زر کے دباؤ اور گیس کی بلند قیمتوں کا حوالہ دیتے ہوئے اس سرکاری طور پر اعلان کردہ اضافے کے باوجود مارکیٹ میں یوریا کی قیمت اب بھی بہت زیادہ ہے اور پاکستان کے بیشتر حصوں میں 2600 روپے فی بوری فروخت ہو رہی ہے۔ خریف کی فصل کی وجہ سے مانگ میں اضافہ ہوا ہے، جس بنا پر سپلائی دباؤ میں آ گئی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ گزشتہ 3 دہائیوں میں چین کی بے پناہ ترقی کے پیش نظر پاکستان اصلاحات، بالخصوص تجارت اور زراعت میں چین کے تجربے سے سیکھنے میں دلچسپی رکھتا ہے۔ انہوں نے مختلف شعبوں میں برآمدات اور درآمدات کی سطح کو بہتر بنانے کے لیے 2 طرفہ تجارت کو فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اپنے توانائی کے وسائل کی افزودگی کے لیے چین سے ہنر سیکھنے میں بھی دلچسپی رکھتا ہے۔ وزیر اعظم نے پاکستان میں چینی سرمایہ کاروں کو مکمل سہولت فراہم کرنے اور چین کے تعاون کو کبھی فراموش نہ کرنے کا عہد کیا۔ ترکی کے دورے کے دوران وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے اپنی حکومت کی جانب سے ہر ممکن تعاون کا یقین دلاتے ہوئے پاکستان اور ترکی کی تاجر برادری پر زور دیا کہ وہ 2 طرفہ تجارت کو اگلے 3 سالوں میں 5 ارب ڈالر تک لے جائیں گے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت نے کاروباری شعبے کی تمام رکاوٹوں کو دور کر دیا ہے اور ترک سرمایہ کاروں پر زور دیا کہ وہ اپنا سرمایہ متعدد شعبوں جیسے کہ زراعت، IT، انفارمیشن ٹیکنالوجی، ڈیری، ٹیکسٹائل اور دیگر کئی شعبوں میں لگائیں۔
पाकिस्तान ने जुलाई से अप्रैल 2021-2022 के दौरान खेलों के सामान की बरामद से तकरीबन 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर कमाए, जो पिछले माली साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में 33.43% इजाफा जाहिर करता है। इनमें से फुटबॉल की बरामदात 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर से तजावज कर गईं, जिसकी मालियत में 40% से ज्यादा इजाफा हुआ, और दस्ताने की बरामदात 60 मिलियन अमेरिकी डॉलर से तजावज कर गईं। पाक अफगान सहूलत कमेटी PAFC ने मंगल के रोज हुकूमत से मुतालबा किया कि वो मुल्क की बरामदात को बढ़ाने के लिए अफगानिस्तान से खाम माल की दरामद पर सेल्स टैक्स समेत तमाम ड्यूटीज और टैक्सेस माफ करे। उन्होंने कहा कि कालीन साजी की सनत पाकिस्तान की सबसे बड़ी काटेज सनतों में से एक है, जो भारी मिकदार में ज़र मुबादला कमाने के साथ साथ देही इलाकों के लोगों के लिए रोजगार का एक जरिया भी है, जो अपने घरों में काम करने वाली खवातीन मजदूरों को भी रोजगार फराहम करती है। हुकूमत ने सनती शोबे के लिए कुछ खाम माल की दरामद पर से पाबंदी हटा दी है। हुकूमत ने मुल्क के कम होते ज़र मुबादला के ज़खायर पर दबाव को कम करने के लिए बढ़ते हुए दरामदी बिल को रोकने के लिए खाने पीने की अशिया और मोबाइल फोन समेत इलेक्ट्रॉनिक मसनूआत समेत तकरीबन 800 अशिया की दरामद पर पाबंदी लगाई। इसका इतलाक खाम माल, दरामदी अशिया और सनती आलात मशीनरी जो सनती मैन्युफैक्चरिंग के लिए है और गैर मुल्की ग्रांट जो मुख्तलिफ इमदादी सरगर्मियों में इस्तेमाल हो रही है पर नहीं होगा। रिफिनेटिव एकोन के आदादोशुमार के मुताबिक 24 फरवरी को रूस यूक्रेन तनाज़े के बाद से भारत को 34 मिलियन बैरल रियायती रूसी तेल मौसूल हुआ है, जो कि 2021 की इसी मुद्दत के मुकाबले में दीगर मसनूआत समेत रूस से कुल दरामदात की कदर में 3 गुना ज्यादा है। रूसी और हिंदुस्तानी तवानाई कंपनियां मुद्दती सप्लाई के मुआहदों और रूसी तेल और गैस के मंसूबों में हिस्से के मुमकिना हसूल पर भी बात करती रही हैं। बढ़ती हुई सब्सिडी मुख्तस करने की वजह से तेल की सनत को अब खाम तेल और तेल की मसनूआत की दरामद के लिए बैनुल-अक़वामी मालियात का बंदोबस्त करने में चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तान की ईंधन की सप्लाई अब कर्जों की महदूद सहूलियात, बुलंद अफरात ज़र और रुपए के मुकाबले में डॉलर की बढ़ती हुई कीमत की वजह से भी शदीद खतरात से दोचार है। मालियाती परेशानी ने तेल की सनत को इंतहाई कमज़ोर और नाजुक बना दिया था और इसके नतीजे में सप्लाई चेन टूट सकती है। ताहम ये तखमीने तजवीज़ करते हैं कि जब तक हुकूमत चंद दिनों में कीमतों में एक और इजाफे का ऐलान नहीं करती, इसे ईंधन पर सब्सिडी की फराहमी जारी रखनी होगी। इससे कबल पाकिस्तान के वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा था कि वज़ीर आज़म शरीफ ने ईंधन और तवानाई की सब्सिडी मनसूख न करने का फैसला किया है, क्योंकि सब्सिडी की मनसूखी से महंगाई में इजाफा होगा और कम और दरमियानी आमदनी वाले तबकों की ज़िंदगियों पर शदीद असर पड़ेगा। कीमतों में इस्तेकाम और ज़ख़ीरा अंदोज़ी रोकने के लिए पाकिस्तान ने 9 मई को चीनी की बरामद पर मुकम्मल पाबंदी आयद करने का ऐलान किया। आइए देखते हैं आज की रिपोर्ट। पाकिस्तान की चीनी की पैदावार दुनिया में बहुत ज़्यादा नहीं है। इससे कबल आलमी बरामदात का सिर्फ 2% था। अब इसकी बरामद पर पाबंदी लगा दी गई है। हाँ, फ़िलहाल तो एक्सपोर्ट नहीं हो रही जी किसी भी कंट्री में। पिछले 16-17 में मुख्तलिफ मालिक में एक्सपोर्ट होती रही है जब चीनी बहुत ज़्यादा सरप्लस थी। तो पिछले साल तो चीनी वैसे ही मुल्क में एवरेज थी, इसलिए एक्सपोर्ट नहीं हो सकी। अगरचे पाकिस्तान का गन्ने का रकबा दुनिया में 5वां बड़ा रकबा है, लेकिन इसकी चीनी की पैदावार में बेहतरी की बहुत गुंजाइश है। चीनी की पैदावार बुनियादी तौर पर गन्ने की फी हेक्टर पैदावार और चीनी की मिकदार पर मुनहसर है। मौसम और दीगर अवामिल की वजह से गन्ने की पैदावार कम है और इसका मुनाफा कम है, जिसकी वजह से गन्ने के बहुत से काश्तकार काश्त तर्क करने पर गौर कर रहे हैं। पिछले साल की बनिस्बत इस साल गन्ने की उतनी बेहतर रिकवरी नहीं ले सके, शायद उसमें कुछ बारिशों की कमी की वजह है। तो उनकी वजह से मुश्किल पेश हो जाती है तो असी कमाद छड़ मतलब बेचने लगाने छड़ दिते ने। जिथे अगे 20 किले कमाद सी उत्थे हुण 7-8 किले कमाद बीजीगा कि साडे माल का भी सरदा रहे तो कुछ मतलब मिल ते सुट लेगा। तो जिंदे अगे बेहतरी तो कुछ अगे वजन नालों आ गई है, लेकिन 700-800 मन गन्ने का वजन आंदा है। तो जिहड़ा गन्ना काना हो जाता है, कुछ इहदे तो भी बंदे चल गए ने। उनका कहना था कि गन्ने की पैदावार और चीनी की मिकदार को बेहतर बनाने के लिए गन्ने की इकसाम से आगाज करने की ज़रूरत है। और उसके बाद जो मेजर चीज़ है ना वो क्वालिटी ऑफ शुगर केन है, वैरायटी ऑफ शुगर केन। हमारे एरिया में तकरीबन इसकी 8 से 9% रिकवरी है। जब स्टार्ट होती है तब इससे भी कम होती है। तो
तो उसमें से स्टार्ट में हमारी तकरीबन 7 किलो से स्टार्ट होता है, जब मिड ऑफ नवंबर में मिल स्टार्ट होती है, और पीक रिकवरी जो है वो 9 तक जाती है। ਮੁਖਤਲਿਫ ਦੋਸਤ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਕੇ ਬੀਜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬੀਜ ਆਏ, ਕੋਈ ਚਾਈਨਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਬੀਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਰਫ ਕਰਾ ਦੇਵੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਜੋ ਸਾਬਕਾ ਬੀਜ ਨੇ। आला मयार के बीज गन्ने की पैदावार की पहली जमानत हैं। गन्ने की काश्त में कीड़ेमार दवा और खाद का मयार भी अहम है। ਦਵਾਈਆਂ ਹੀ ਆਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਖਾਦਾਂ ਆਣਗੀਆਂ, ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏ ਵੀ ਜਿੰਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਖਾਦ ਅੱਛੀ ਮਿਲੇ ਤੇ ਥੋੜੀ ਖਾਦ ਨਾਲ ਸਰ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਹਲਕੀ ਖਾਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦੀ ਪਏਗੀ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। एक इंटरव्यू से रिपोर्टर को मालूम हुआ कि आला मयार की खाद की 2 से 3 बोरियां गन्ने की 1 एकड़ पैदावार हासिल कर सकती हैं, जबकि इसी पैदावार के हुसूल के लिए कम मयार की खाद की 8 बोरियां दरकार हैं। इसके अलावा आलात की कमी गन्ने की कटाई में फुजले का बायस बनती है। ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੰਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਮਾਦ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਿੱਟੀ ਲਗਾ ਲਈਏ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਆਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਇਤਨੀਆਂ ਹੱਲਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਕਮਾਦ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਲਾਈਗੀ, ਹੱਲਾਂ ਥੱਲੋਂ ਕਮਾਦ ਨੂੰ ਮੋਢ ਨੂੰ ਪੈ ਕੇ ਤੇ ਕਮਾਦ ਪੱਟ ਛੱਡਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸਾਈਡਾਂ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਈਡਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ 3 ਕਰਮ ਦਾ ਮੱਥਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਧਰੋਂ ਵੀ ਤੇ ਉੱਧਰੋਂ ਵੀ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕਮਾਦ ਪੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਦ ਪਟੀਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆ ਜਾਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਕਮਾਦ ਵੀ ਨਾ ਪਟੀਵੇ, ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਪਟੀਵੇ, ਕਿ ਸਹੀ ਮਿੱਟੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਵੀ ਪੂਰੀ ਮਿੱਟੀ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਮਾਦ ਡਿੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਕਮਾਦ ਡਿੱਗੇਗਾ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਉਹਦਾ ਵਜ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇੰਨੇ ਹਾਈ ਰੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਆਮ ਛੋਟਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਫੋਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਖਾਸ਼ ਹੈ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤ ਅੱਗੇ ਵੀ ਔਰ ਚਾਈਨਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੁਤਾਰਫ ਕਰਾਈ ਜਾਏ ਜਿਹੜੀ ਸਸਤੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ करे। ताहम चीन में एक ही तरह के गन्ने से किसानों को मुआशी नुकसान नहीं होगा, बल्कि उन्हें गुर्बत से भी निजात मिलेगी। 2014 के अवाइल में लाइबिन ग्वांगशी चीन में 2000 हेक्टर डबल हाई गन्ने की नुमाइश की बुनियाद 533 किलोग्राम फी हेक्टर की औसत पैदावार और 14% से ज्यादा चीनी की मिकदार तक पहुंच गई। उन्होंने ये कैसे हासिल किया? जदीद ज़राअत और चीनी की पैदावार को इज्तिमाई तौर पर लीज पर ली गई ज़मीन के साथ साथ मलकीती ज़मीन पर भी मुनज़्ज़म तरीके से भरपूर तरक्की दी जाएगी। हम पौधे लगाने, ज़ख़ीरा करने, लॉजिस्टिक्स, तकसीम और पैदावार में बुनियादी पोस्टें फराहम करते रहते हैं। किसानों की आमदनी को यकीनी बनाने के लिए हम किसानों को पेशा वराना तरबियत के ज़रिए ज़रई पैदावार और तकसीम में महारत हासिल करने के काबिल बनाने पर तवज्जो मरकूज़ करते हैं, जिससे बहुत से चीनी देहाती अपनी आमदनी में इजाफा कर रहे हैं। पाकिस्तानी किसानों को दरपेश बीज, खाद और मैकेनाइजेशन के मसाइल के मखसूस हल क्या हैं? बीजों की सनत ज़राअत की चिप है, जिसे मौसमी हालात, ज़मीन की ज़रखेज़ी, पैदावारी चक्कर और दीगर अवामिल के साथ मिलाकर इस पर तहकीक की जानी चाहिए। जबकि पौधे लगाने के इलाकों में मुख्तलिफ सरगर्मियों को फ़रोग दिया जा रहा है। काश्तकारों की रहनुमाई के लिए इनके गन्ने की काश्त के इल्म और फील्ड में काम करने की सलाहियत को बेहतर बनाना ज़रूरी है। एज अ लोन उनको सीड प्रोवाइड करते हैं कि ताकि वो अच्छी क्वालिटी और अच्छी वैरायटी काश्त करें, जिससे गन्ने की रिकवरी भी अच्छी हो और यील्ड भी अच्छा है। इसमें ग्रोअर का भी फ़ायदा है और मिल का भी फ़ायदा है। मिल मालकान को वो वाला गन्ना चाहिए जिसमें शुगर कांस्टेंट ज़्यादा हो और यील्ड ज़्यादा हो, क्योंकि शुगर कांस्टेंट ज़्यादा होंगे तो रिकवरी बेहतर आएगी, और यील्ड ज़्यादा बेहतर होगा तो हमारा ग्रोअर कंफर्टेबल रहेगा, उसकी काश्त में उसको बेनिफिट होगा तो वो गन्ने की मज़ीद काश्त करेगा। खाद की कमी या इसके कम मयार की सूरत में मसाइल से कैसे निपटा जाए? बदल बदल कर फसल लगाने से मिट्टी के ग़ज़ाई अज्जा में बेहतरी लाई जा सकती है, क्योंकि कई सालों तक गन्ने की मुसलसल काश्त और खाद के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से मिट्टी सख्त हो जाती है। गन्ने की कटाई के मौसम में गन्ने की जड़ों के नुकसान से बचने के लिए मुख्तलिफ खेतों के मखसूस हालात के मुताबिक कटाई के मुनासिब आलात का इंतखाब किया जाना चाहिए।
हाथ से कटाई के जरिए एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 1 टन गन्ने की कटाई की जा सकती है, लेकिन मशीनी कटाई से ये 70 या 80 टन से भी बढ़ सकती है, जिससे खरीदारी के अखराजात में भी जबरदस्त कमी आएगी। हम गन्ने की कटाई के छोटे छोटे आलात इस्तेमाल करते हैं और कटाई के वक्त हम मदामी गन्ने पर तवज्जो मरकूज करते हैं, क्योंकि मदामी गन्ने की जड़ें ज्यादा पुख्ता और गहरी होती हैं जो नुकसान से बच सकती हैं। शुगर फैक्ट्री आमतौर पर काश्तकारों के साथ फाल तौर पर राब्ता करती है ताकि प्लाटों को मुल्हिका प्लाटों में मजबूत किया जा सके, जिन्हें फिर मैकान की तौर पर एक दूसरे के साथ बराबर किया जाता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि ये मशीन की कटाई के लिए मौजू हों, और कतार में मुनासिब फासला रखना भी बहुत जरूरी है। क्या इसका मतलब यह है कि सिर्फ मैकेनिकल कटाई अच्छी है? क्या एक बार हार्वेस्टर हर किस्म के गन्ने के खेतों में इस्तेमाल किया जा सकता है? गिरे हुए गन्ने की कटाई हाथ से करना बेहतर है। कट ऑफ हार्वेस्टर एक ताकतवर मशीन है, ताहम बाद में दबाने का अमल जारी नहीं रह सकता, इसलिए मुख्तलिफ मराहिल पर गन्ने के टूटने और ख़राबी का सबब बनना आसान है, जिससे इसके असल पैदावारी मयार पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। पूरे डंठल समेत कटाई करने वाली मशीन से गन्ने के टूटने से बचा जा सकता है, लेकिन ये गिरे हुए गन्ने वाले खेतों में काबिल कदर कारकर्दगी का मुजाहिरा नहीं करती। गन्ने की कटाई में बुनियादी तौर पर कट ऑफ टाइप लेने और मुकम्मल डंठल कटाई के मोड पर गौर किया जा सकता है। शुगर इंडस्ट्री आपको पता है 4 माह चलती है और नॉन स्टॉप चलती है, इसमें स्टॉपेज नहीं है। क्वालिटी ऑफ पार्ट जो है वो बड़ा मैटर करता है कि जो हमें पार्ट चाहिए उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, और चाइना में हर तरह की क्वालिटी अवेलेबल है। वो शुगर इंडस्ट्री को अच्छी क्वालिटी के पार्ट्स प्रोवाइड करे और असिस्टेंस भी दे। उनके जो टेक्निकल्स हैं, उनके इंजीनियर्स हैं, वो हमारे पास विज़िट करें और इस चीज़ को समझ के हमें अपने पार्ट जो मशीनरी प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी टेक्निकलिटी उसमें असिस्ट करें, उसमें हमें गाइड भी करें उसके लिए। इस वक्त पाकिस्तानी शुगर मिलों ने भी गन्ने की काश्त के इब्तदाई मरहले से ही किसानों के साथ तावन शुरू कर दिया है और उन्हें मुतल्लिका रहनुमाई और मदद फराहम की है। शुगर मिल गन्ने से ही चलनी है, उसकी प्रोक्योरमेंट के लिए वो रेट देना पड़ता है जी। इसीलिए हमारी यही होता है कि चीनी की प्राइस भी बेहतर की जाए, जिससे बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं। ग्रोर की अदायगियाँ बर वक्त हो सकती हैं और ग्रोर भी हमारी पब्लिक में शामिल है, वो कंफर्टेबल रहेगा तो इस फसल को ज़्यादा काश्त करेगा, और चीनी की प्राइस बेहतर होगी तो हम गन्ने की प्राइस उससे ज़्यादा बेहतर दे सकते हैं। शहर के पावर सिस्टम में बिजली की तकसीम का निज़ाम सार्फिन से बराह रास्त जुड़ा होता है, जो कि बिजली की फराहमी, पैदावार और रोज़मर्रा ज़िंदगी के लिए लोगों की आम बिजली की खपत को मुतासर कर सकती है। इसलिए इसकी मनसूबाबंदी और डिज़ाइन के काम पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। बिजली की फराहमी की बुनियादी मांग पूरी करने के लिए केबल पावर सप्लाई एक नागज़ीर रुझान बन जाता है। पाकिस्तान में क्या ट्रेंड चल रहा है? उसके अलावा जो 729 है, 329 है, इंचेस में चला जाओ या मिलीमीटर में चले जाते हैं, 1.5 है, 2.5 mm है, 6 mm, 4 mm, 25 mm, 50 mm, 35 mm, 70 mm, 1000 mm अगर हमने माल बनाया मल्टी कोर में भी, और मल्टी कोर में सब माल जो है ना प्रोडक्शन में जाकर, तो उसके अलावा ABC केबल बनाई है। अदरवाइज जो भी प्रोसीजर मतलब कंपनी को ऑर्डर मिलता है उन फॉलो करने की कोशिश करते हैं इंशाल्लाह, और पूरा करने की कोशिश करते हैं। डॉन ने 2019 में रिपोर्ट पेश की कि बिजली की कीमत को कम करने और बिजली की बढ़ती हुई तलब को पूरा करने के लिए पाकिस्तानी हुकूमत अगले 20 सालों में अपनी घरेलू बिजली की पैदावारी सलाहियत को 3 गुना बढ़ाकर 1,11,000 मेगावाट करने का मंसूबा रखती है। बरकी ताकत और तवानाई की भरपूर तरक्की के साथ तारों और केबल्स की मांग में इजाफा हुआ है, जबकि तारों और केबल्स की तैयारी के लिए इस्तेमाल होने वाले आलात की एक बड़ी तादाद चीन से दरामद करने की जरूरत है। अभी साफ ज़रा अभी ऑटोमेटिक सिस्टम आ गया है, कंप्यूटर ड्रॉवर आ गया है। अभी जो पहले सिस्टम था वो सेंटर जो करते थे वर्कर, उसके ऊपर हाथ से सेंटर होता था, वो सेंटर करते करते कितना माल स्क्रैप हो जाता। अब हमारे पास यही देख लो, ये मशीन कंप्यूटर मशीन है जिसको हमने एडजस्ट मशीन है ये ताइवान की सर ताइवान की मशीन है। इसको जब हम एडजस्ट करते हैं तो ये कंप्यूटर जेट सिस्टम होता है, उसको ऑटोमेटिक सिस्टम एडजस्ट करोगे तो आपका सेंटर आउट ओके हो जाता है। वो उसके मतलब स्क्रैप भी हमारी कंट्रोल होती है और प्रोडक्शन हमारी बढ़ती है, उसकी स्पीड ज़्यादा है, प्रोडक्शन भी बढ़ेगी, उसके अलावा स्क्रैप कम होगी।
एडवांस जितनी मशीनरी एडवांस पे जाएंगे तो इंशाल्लाह उसमें हमारी प्रोसीजर बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगी, स्क्रैप कम होगा। हमें फैक्ट्री को जो अप करने की कोशिश करेंगे उसमें यही सिस्टम है कि स्क्रैप कम होना चाहिए, प्रोडक्शन अप होनी चाहिए। जैसे हमने 2 मशीनें ताइवान की बनाई है, हमें जो कंप्यूटर सिस्टम होता है उसमें 1 to all वहाँ पे एक वर्कर काम चलता लगते हैं, वर्कर के भी हमें सेविंग होती है। उसके अलावा उसकी प्रोडक्शन जो होती है वो बहुत अप है गया। उसके अलावा जो मेरे कोयल जहाँ पे लड़के मतलब खास से मेहनत करते हैं वो ऑटोमेटिक मशीन पे करती है, उसका में बहुत ज़्यादा प्रोसीजर फ़ायदा होता है। उसके अलावा में जो यहाँ पे अगर हम 300 कोयल पर डे बनाते हैं तो वो 1000 कोयल पर डे बनाती है। उसके ऊपर में प्रोडक्शन भी बढ़ती है और वर्कर भी कम लगते हैं और रॉ मटेरियल जो होता है स्क्रैप जो होती है वो बहुत कम होती है, स्क्रैप कंट्रोल होती है। इसलिए हमें चाहिए कि हम जो ना चाइना की मशीनरी अफोर्ड करें और एक्सपोर्ट करके उसके ऊपर हम काम करें इंशाल्लाह ताला। तो मतलब है कि जो पहले 40 साल पहले की जो पीछे चले जाएं उसकी जो मशीनरी थी जो अप टिल मतलब 2022 की जो मशीनरी है उससे बहुत फ़र्क है। मतलब है उसकी प्रोडक्शन भी ज़्यादा है पिछली मशीन से, प्रोडक्शन भी ज़्यादा है, फिनिशिंग भी ज़्यादा है। तो मतलब है कि ये चीज़ें हैं जो चेंज हुई हैं। फास्ट केबल पाकिस्तान के सबसे बड़े केबल मैन्युफैक्चरर्स में से एक है जो DHA ब्लॉक वाई लाहौर में वाक़ है। गुज़श्ता 20 सालों में फास्ट केबल्स ने पैदावारी पैमाने को बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी और आलात को अपडेट करने में मुसलसल सरमायाकारी की है। हालिया बरसों में फास्ट केबल ने चीन के साथ अपने ताउन को खास तौर पर मजबूत किया है, जिसमें 50 चीनी कारोबारी इदारों का इहाता किया गया है। चाइनीज वर्कर भी बहुत अच्छे हैं और बहुत हार्ड मेहनत करते हैं। उसके अलावा सेटिंग कराने में और वर्कर की पूरी सपोर्ट करते हैं कि मशीनरी के ऊपर और अगर कोई उसमें प्रॉब्लम होती है, अगर हम उसको मतलब जहाँ पे करते हैं ना फूड का अप्लाई करते हैं कि हमारे पास मशीन में ये प्रॉब्लम हुई है तो वो इग्नोर नहीं करते हैं, बल्कि वो फ़ौरन आकर उसको जो फॉलो करते हैं उसका जो हल निकालते हैं मशीन को और उसकी कंटिन्यू प्रोडक्शन में लेकर जाते हैं। तो उसमें ये क्वालिटी है चाइना वालों की कि जो वो एक्सपोर्ट करते हैं और वर्कर से बहुत कंप्रोमाइज़ करते हैं। इससे वाज़ेह हुआ है कि आलात के अलावा फास्ट केबल का तकरीबन तमाम खाम माल चीन से दरामद किया जाता है, जिसका सालाना दरामदी हुजम 1000 से 2000 टन है और दरामदशुदा केबल्स का 80% से ज़्यादा चीन से आता है। सिस्टम तो यही है, देखें जो इम्पोर्टर है ना वो माल इंपोर्ट करते हैं चाइना से, फिर वो अपने गोडाउन में रखते हैं। वो मतलब है देखते हैं मार्केट की पोजीशन क्या है, मार्केट में अगर माल हो अवेलेबल तो फिर वो स्मूथली जो रेट चल रहा होता है वही होता है। इन केस अगर शॉर्ट हो जाए माल तो फिर वो उनका अपना रेट होता है। उसमें आगे हमें बहुत परेशानी होती है कि जब हमें माल नहीं मिलता, रेट की फ्लक्चुएशन होती है, उसमें बहुत ज़्यादा कबाहतें आती हैं। चूँकि तार और केबल इंडस्ट्री का ज़्यादातर अहम खाम माल पाकिस्तान में तैयार नहीं होता है और खाम माल पर टेरिफ कई सालों से बढ़ रहे हैं, पाकिस्तान में मुकामी केबल मसनूआत दरामदी मसनूआत के मुकाबले में कम मसाबकती हैं। मिसाल के तौर पर इलेक्ट्रोलाइटिक कॉपर और एल्यूमिनियम इनगोट्स पर टैरिफ 3% है, जिसमें इजाफी टैरिफ 1% है। इस वक्त में सबसे ज़्यादा मुश्किल एक तो अभी आपकी मौजूदा सूरत हाल में इलेक्ट्रिसिटी का है कि लाइट बहुत पूरे दुनिया में इतनी शट डाउन नहीं होती जितनी पाकिस्तान में है। दूसरा कुछ ये है कि हमें रॉ मटेरियल जो है ना वो जो चाइना से कई दफ़ा इंपोर्ट करना पड़ता है, उसके अंदर बड़ी फ्लक्चुएशन आती हैं, जो ड्यूटीज़ बढ़ जाती हैं, रेट अप डाउन होते रहते हैं। ये बहुत ज़्यादा मसले हैं, मसाइल हैं। बाकी लोकल इंडस्ट्री है, जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है वो तो हम इस्तेमाल कर ही रहे हैं। हुकूमत की तरफ से तो हम यही हुकूमत से रिक्वेस्ट करते हैं कि एक तो बिजली सस्ती करे, दूसरी जो टैक्स कंजम्पशन है उसका जो ना लो प्राइस करें ताकि जो ना मुश्किलात ना हो। बाकी ये जो लेबर का सिस्टम है, ये गवर्नमेंट ने इदारे बनाए हुए हैं, सोशल सिक्योरिटी है, ओल्ड एज बेनिफिट है, उनके अंदर हमने अपने जितनी लेबर है रजिस्टर करवाई हुई है, उसका जितना भी लायबिलिटी है हमारे पे है। हम अपने लेबर के कार्ड हमने बनवाए हुए हैं, सोशल सिक्योरिटी के भी, ओल्ड एज के भी, उनका जो फ़ीस है महीना, मंथली या सालाना, वो इदारा ही पे करता है। उससे ये है कि एम्प्लॉय को ये रिलीफ मिलता है कि वो मेडिकल उसका फ्री है, मतलब है कोई ऑपरेट है, मेडिसन है, ये सब चीज़ें फ्री हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमने इतना मतलब लेबर के साथ वो अपना एक बनाया हुआ है सिस्टम। मुकामी केबल मैन्युफैक्चरर्स के ख्याल में चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी मंसूबे में इस्तेमाल होने वाली दरामदी तारों और केबल्स के लिए कस्टम ड्यूटी और सेल्स टैक्स से इस्तिस्ना की पॉलिसी ने चीन से दरामदात को फ़रोग दिया है, लेकिन मुकामी मसनूआत को भी ऐसी ही तरजीही पॉलिसियों से लुत्फानंदोज़ होना चाहिए जो न सिर्फ मुकामी मसनूआत को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकें बल्कि चीन में भी एक बड़ी मार्केट को मिस ना करें। चाइना चूँकि सुपर पावर भी है
اور انڈسٹری کے لحاظ سے بھی بہت بڑا ہے اور ہمارے نیئرسٹ بھی ہے سمجھیں. اب شاہراہ قراقرم سے یہ جو سی پیک بن رہا ہے یہ بہت زیادہ ہے. ہمیں سوٹیبل بھی وہی لگتا ہے کیونکہ سارا جتنا بھی را مٹیریل ہے وہیں سے آتا ہے چائنا سے. چائنا ہر قسم کا را مٹیریل بنا رہا ہے, مطلب ہے کہ کیمیکلز میں ہو یا اور دوسری چیزوں میں, تو وہ انڈسٹری کے بھی لیے ہمارے لیے سوٹیبل ہے. جو وہاں سے مال آتے ہیں پورٹ پر آتے ہیں, پورٹ سے آ کے پھر وہ ڈیوٹیز پہ ہوتی ہیں, اس کے بعد وہ جو ہے نا گوڈاؤن میں جاتا ہے, اس کے بعد مارکیٹ میں آتا ہے وہ مال. 2012 میں PwC کی تحقیقی رپورٹ کے مطابق بجلی کی کمی کی وجہ سے پاکستان کا اوسط سالانہ GDP نقصان 13.5 بلین ڈالر تک ہے. پاکستان کو بجلی کی طویل مدتی قلت کا سامنا ہے. ملک کے مختلف حصوں میں بجلی کی بندش باری باری کی گئی. بڑے شہروں میں روزانہ بجلی کی بندش میں تقریباً 10 گھنٹے جبکہ دیہی علاقوں میں 22 گھنٹے لگتے ہیں. ملک میں بجلی کی اوسط کمی 4000 میگا واٹ تھی. جب سے سی پیک شروع ہوا پاکستان میں بجلی کی قلت کو بہت حد تک ختم کر دیا گیا ہے. سی پیک اتھارٹی کے اعداد و شمار کے مطابق جنوری 2022 تک سی پیک کے تحت مکمل ہونے والے توانائی کے منصوبوں کی کل صلاحیت 5.32 ملین کلو واٹ تک پہنچ گئی. جب سی پیک کا آغاز ہوا تو چین نے اعلان کیا کہ وہ پاکستان کی پاور انڈسٹری میں 36 بلین ڈالر کی سرمایہ کاری کرے گا تاکہ نہ صرف مقامی بجلی کی کمی کو بہتر بنایا جا سکے بلکہ پاکستان کے کیبل کے کاروبار کی ترقی کو بھی بہت فائدہ پہنچے. مشکلات یہی ہیں کہ اگر چائنا جس سے مال امپورٹ ہو رہا ہے اگر وہ کوئی اپنے پرائز لو کر لیں اور ڈیوٹیز میں جو نا ریلیف ملے تو اس سے بہت بہتری آ جائے گی کہ ہمیں آسانی ہو جائے گی لوکل مارکیٹ اور اس سے کمپٹیٹر میں نا وہ بہت سہولت ہو جائے گی. سی پیک کے پہلے مرحلے میں چین اور پاکستان نے نہ صرف توانائی کی کمی کو بہتر کرنے کی کوشش کی بلکہ انفراسٹرکچر کی تعمیر پر بھی توجہ دی. لاہور اورنج لائن میٹرو ٹرین سسٹم پروجیکٹ, قراقرم ہائی وے اپ گریڈنگ فیز 2, چین پاکستان کراس بارڈر آپٹیکل کیبل پروجیکٹ وغیرہ جیسے ٹرانسپورٹیشن انفراسٹرکچر کے بہت سے منصوبے پاکستان کی اقتصادی ترقی کو بڑھانے کے لیے بہت اہمیت کے حامل ہیں. ناظرین, آج کا کوریڈور ریکارڈر یہی تک. بہت شکریہ, ملتے ہیں اگلی بار.